Hello students, today I am going to teach you lesson number 8. A house is not a home. A house is not a home focuses on the need and significance of love, affection and care that is necessary to turn a house into a home. Life without love and affection is meaningless. So here in this chapter you are going to meet a boy like you. Let us see what happens to him. My first year of high school felt awkward. After leaving junior high at the head of my class with all the seniority the upper grade levels could afford me, it felt strange starting over as a freshman. So here we see the writer, the author, recalls his days. He is not happy. He was sad, lonely, and friendless. He misses the old school. He thinks himself as a stranger, a freshman. The school was twice as big as my old school, and to make matters worse, my closest friends were sent to different high school. I felt very isolated. His new school is twice bigger than the old one. His old friends had joined another school. He is isolated. He is alone. He is very sad. वो बहुत उदास है, अपने पुराने स्कूल को मिस करता है. वो अकेला रह गया है, उसका मन नहीं लग रहा. I missed my old teachers so much that I would go back and visit them. ऑथर कहता है कि मैं अपने पुराने स्कूल के टीचर्स को बहुत मिस करता हूँ, उनको विजिट करना चाहता हूँ. They would encourage me to get involved in high school activities so that I could meet new people. वो उस बच्चे को इनकरेज करते हैं, मोटिवेट करते हैं, उत्साहित करते हैं कि जो जितनी एक्टिविटीज है उनमें वो पार्टिसिपेट करें, सो ही कैन मीट टू द न्यू पीपल, सो ही कैन मेक bond of love there. They told me that in time I would adjust and probably end up loving my new school more than I had my old one. उन्होंने मुझे ये बताया कि ऐसे आप एडजस्ट हो जाओगे और अपने पिछले स्कूल को छोड़कर अपने न्यू स्कूल को आप प्यार करना शुरू कर दोगे. They made me promise that when that happened I would still come by and visit them from time to time. वो प्रॉमिस भी करते हैं कि अगर ऐसा होता है वो आ सकता है, हमें मिल सकता है टाइम टू टाइम. I understood the psychology in that they were saying, but I took some comfort in it. Nothing less. Nonetheless. मैं इस साइकोलॉजी को कहता समझता था कि वो बस सिर्फ मेरा मन लगा रहे हैं, बट मुझे इसमें थोड़ा दिलासा मिलता था. बेशक मुझे पता था होने वाला कुछ नहीं, ये नॉनथलेस है, बेकार है. On Sunday afternoon, not long after I had started high school, I was sitting at home at our dining room table doing homework. एक संडे आफ्टरनून को, अब ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था हाई स्कूल जाते हुए, मुझे घर में बैठा था, मैं डाइनिंग रूम में होमवर्क कर रहा था. इट वॉज कोल्ड एंड विंडी फॉल डे एंड वी हैड अ फायर गोइंग इन आवर फायर प्लेस. ठंड का दिन था, जो काफ़ी हवा भी चल रही थी और हमारे घर में हमें घर को गर्म रखने के लिए फायर प्लेस में फायर चल रही थी, आग बल रही थी. As usual, my red tabby cat was lying on top of my papers, purring loudly and occasionally sweating at my pen for entertainment's sake. क्या कि जो मेरी कैट है वो भी मेरे पेपर्स के ऊपर बैठी थी और अपना टाइम पास कर रही थी. उसके साथ ही बैठी थी जो कैट है, और पेन के साथ भी एंटरटेनमेंट कर रही थी. She was never far from me. I had rescued her when she was a kitten, and somehow
She knew that I was the one responsible for giving her the good life. वो कभी मेरे से दूर नहीं जाती थी क्योंकि मैंने उसको एक बार बचाया था, और वो जानती थी कि यही ही पर्सन है जिसकी जिम्मेवारी है उस कैट की अच्छी लाइफ के लिए। माई मदर केप्ट स्टोकिंग द फायर टू कीप द हाउस नाइस एंड वार्म। स्टोकिंग द फायर का मतलब है कि आग में वो और फ्यूल, वुड कह लो, और डाल रही थी सो कि आग जलती रहे और जो उनका होम है, जो घर है उनका, वो गर्म रहे। सडनली आई स्मेल्ड समथिंग स्ट्रेंज। अचानक ही मुझे एक स्ट्रेंज स्मेल आई भाई। The author saw some smoke coming from the ceiling also. And then I noticed it, smoke pouring in through the seams of the ceiling. The smoke began to fill the room so quickly that we could barely see. So the smoke increased. ये तो बढ़ रहा था, देखना ही मुश्किल हो रहा था। Groping our way to the front door, we all ran into the front yard. हम सारे, उसकी मदर दो ही है, जो आगे वाला आंगन उसकी तरफ दौड़ते हैं, फ्रंट यार्ड की तरफ। The whole roof was engulfed in flames and it was spreading quickly. रूफ में को आग लग चुकी थी, जो फ्लेम्स हैं, आग की लाट कहते हैं, जो वो बढ़ रही थी, फ्लेम उसकी आ रही थी बहुत जल्दी। आई रैन टू द नेबर्स टू कॉल द फायर डिपार्टमेंट। मैं पड़ोस में दौड़ता हूँ फायर डिपार्टमेंट को बुलाने के लिए। While I watched my mother run back into the house, मैं देखता हूँ कि मेरी मदर तो घर के अंदर भाग रही थी भाई। My mother then ran out the house carrying a small metal box full of important documents. फिर बाहर क्या लेकर आई वो? एक बॉक्स था मेटल का, उसमें इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट थे। शी ड्रॉप्ड द केस ऑन द लॉन। वो उस केस को लॉन में ड्रॉप करती है। इन अ क्रेज्ड स्टेट, एक पागलों की तरह। रैन बैक इनटू द हाउस, घर द्वारा फिर भागती है। आई न्यू वट शी वॉज आफ्टर। अब मुझे पता था वो क्यों भाग के गई है वो। माई फादर हैड डाइड व्हेन आई वॉज यंग एंड आई वॉज सर्टेन दैट शी वॉज नॉट गोइंग टू लेट हिज पिक्चर्स एंड लेटर्स गो अप इन फ्लेम्स। जब मैं छोटा था तभी से मेरा फादर है वो चले गए थे इस दुनिया को छोड़कर, और मुझे पता था कि अब वो मेरे पिताजी की पिक्चर और उसके कुछ लेटर लेने गई है, नहीं तो वो आग में बल जाएंगे। They were the only things that she had to remember him by. सिर्फ यही चीज़ थी जिनके सहारे अपनी वो ज़िंदगी गुजार रही थी। Still I screamed at her, Mom, no, और मैं चिल्लाया कि मदर आप अंदर मत जाओ। I was about to run after her when I felt a strange hand hold me back. मैं उसके पीछे भागने वाला था कि एक बड़ा सारा हाथ मुझे पकड़ लेता। It was a fireman, आग बुझाने वाला आदमी था। I hadn't even noticed that the streets had already filled with the fire trucks. मुझे ये भी नहीं पता चला था कि स्ट्रीट है वो फायर ट्रक से भर चुकी थी। I was trying to free myself from his grasp, yelling. मैं चीख रहा था, अपने आप को उसके हाथ से छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। You don't understand, my mother isn't there. मैं उसको कह रहा था कि आपको पता नहीं मेरी मदर अंदर है। He held on to me while other firefighters ran to the house. उसने मुझे पकड़ा हुआ था और बाकी के फायर फाइटर्स अंदर चले जाते हैं। He knew that I wasn't acting very logically and that if he were to let go, I'd run. He was right. वो जानता था कि मैं एक्टिंग नहीं कर रहा था। अगर वो मुझे छोड़ देता था मैं भाग के अंदर चला जाता। वो सही था अपनी जगह। It's all right, they'll get her, she said. उसने कहा कोई बात नहीं, वह आपकी मदर को वापस ले आएंगे। He wrapped a blanket around me and sat me down in our car. उसने मुझे एक कंबल से लपेटा और हमारी कार में बैठा दिया। Soon after that a fireman emerged from our house. जल्दी एक फायरमैन हमारे घर से बाहर आया। My mom in a tow. मेरे मॉम एक ट्रॉली में, एक टॉ में थे। He quickly took her over to the truck. वो ट्रक में रख देते हैं उसको। And put an oxygen mask on her. और ऑक्सीजन का मास्क उस पर लगा देते हैं। I ran over and hugged her. मैं भागा और उसको मैंने हग किया, जप्फी डाली। All those times I ever argued with her. मैं हमेशा उसके साथ आर्ग्यू, लड़ता झगड़ता रहता था। With her and hated her. नफरत भी करता था। Her vanished at the thought of losing her.
अब मुझे लग रहा था कि मैं कहीं उसको गुम ना कर दूं, कहीं वो इस दुनिया को छोड़ कर ना चली जाए। अब ये सब खत्म हो चुका था। थैंक यू। नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर वी विल रीड इन नेक्स्ट वीडियो।